Hello guys, everyone is fine. So today I'm going to start the I'm going to start from class 12 onwards. That is carbohydrates. In my last video, I have given lectures about the carbohydrates. No, as also I have uploaded. So still, you can check out what I have discussed in the last videos. So basically today I am going to start from the class 12, that is the unit carbohydrates. Now that is the unit carbohydrates. It is going on. Okay, ये हम पढ़ा रहे थे इसको. तो यहाँ पे आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं that is carbohydrates, and basically we have completed the structure of establishment of glucose. We have already completed up to that. So today I am going to start the new concept here, that what are the limitations of open chain structure of the glucose. ठीक है, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में हम लोग को थोड़ा बहुत लिमिटेशंस मिला है, जिससे कि वो एग्जिस्टेंस नहीं करते ऐसे में. मतलब यहाँ पे सीधा सीधी बात बोल रहे हैं कि जब हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर करते हैं ग्लूकोज का, और हम लोग का ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैसा है ये हम लोग को मालूम है कि हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं. ये होता है हम लोग का ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज. सॉरी, यहाँ पे OH H COH COH यहाँ पे चेंज हो जाएंगे. यहाँ पे H, यहाँ पे OH, 1 2 3 4 5, दैट इज OH. Simply you can write OH H CH2OH. This is the structure of your open chain structure of glucose. इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर. बट इस स्ट्रक्चर्स को जब हम लोग ने एस्टेब्लिशमेंट किया तो बहुत सारा चीज़ मिला हम लोग को. जैसे हम लोग ने बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ देखा जिससे कि ये स्ट्रक्चर एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं हम लोग. जैसे इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हम लोग ने चेक किया. देन वी हैव शोन सम रिएक्शंस आल्सो ना, जिससे कि ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज होते हैं. जैसे 6 कार्बन अनब्रांच चेन की, वहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, ये पूरा लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन में रहता है. ठीक है, फॉर दैट वी हैव टेकन आवर ग्लूकोज एंड सिंपली वी हैव ट्रीटेड विद द हाइड्रोजन आयोडाइड. वी हैव generated an hexane, that is we did our reductions. So from that also we can establish that the carbon is not branches. ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में जो कार्बन होते हैं, जितना भी कार्बन है, ऑल आर इन लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन. तो इसके बाद हम लोग ने देखा कि वहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, सी डबल बॉन्डेड हो. तो उसके लिए भी हम लोग ने देखा कि हम लोग ने क्या किया, 2 तरह का रिएक्शंस किया. एक हो गया हाइड्रोजन साइनाइड और एक हो गया हम लोग ने किया हाइड्रोक्सिल एमाइन. ठीक है, एक में जेनेट होता है ऑक्साइम और एक में होता है साइनोहाइड्रिन. तो उससे भी स्ट्रक्चर के एस्टेब्लिशमेंट होते हैं ना, कि हाँ ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है. इसके बाद हम लोग ने देखा प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल CHO ग्रुप. CHO ग्रुप टर्मिनल पोजीशन में है कि नहीं, उसको भी हम लोग ने कंफर्म किया बाय ब्रोमीन वाटर. और ब्रोमीन वाटर के बाद जब हम लोग ने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शंस किया, इट फॉर्म्स इट शोज एन ऑक्सीडेशन. और ब्रोमीन वाटर इज व्हाट, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो यहाँ पे CHO इट कन्वर्ट्स टू COOH, दैट इज इट फॉर्म्स अ ग्लूकोनिक एसिड्स. So this type of reactions we have studied. Also we have shown that whether the carbon having 5 OH group or not. You can see that in this carbon it has 1 OH group, in that carbon also OH, in this carbon also 1 OH group on the left hand side. In this carbon also we are saying that here also 1 OH group is there. Similarly in this carbon also CH2OH. So we have 5 carbon OH bond. So for that we confirmed by a treatment with your acid anhydride. So on the treatment with glucose, on treatment with acid anhydride, we formed glucose pentaacetate. So and this confirms that the glucose has 5 OH bond with the carbons. So basically these are some experiment from where we can establish the the open chain structure of the glucose. Now it confirms that. Now the question is that whether the structure of the glucose exists in this form, whether it is a stable form. So basically some other reactions also is there, some other reactions also there. For that the glucose doesn't show any positive
reactions or positive test. Like glucose in open chain, if it is exist in open form, then it have an aldehydic group. That means you can say aldohexose. You can say this compound is known as aldohexose in terms of carbohydrates. तो यहाँ पे 6 कार्बन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डोहेक्सोस. और एल्डो डोंट हैव एल्डोहेक्सोस और इट विल बी सम अदर नेम, क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है ना, तो इसमें क्या नाम होंगे, एल्डोहेक्सोस होंगे या दूसरा कुछ होंगे, यहाँ पे एल्डोहेक्सोस होंगे या कुछ अलग होंगे, यहाँ पे होंगे ये एल्डोहेक्सोस बोल सकते हैं हम लोग उसको. व्हाई? बिकॉज इट हैज 6 कार्बन एटम्स. ओके, and basically here you can say that it has 6 carbon means hex, and it has aldehydic group, so aldohexose. Now basically the name of this compound is glucose. ठीक है, इसका कॉमन नेम है ग्लूकोज, बट जनरली ये ओपन चेन में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इट हैज अ फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप आल्सो, एंड फॉर दिस फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप इट कैन शो मेनी रिएक्शंस. इट कैन शो whatever the aldehydes will show the reactions, the positive test. Similarly the glucose will also show because it contains an aldehydic group, but some of the reactions it doesn't show. From that also we generally अगर ये aldehyde होने के बाद भी, aldehydic group होने के बाद भी अगर reactions show नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? अगर ये aldehydic group है तो it will show some reactions like that of aldehyde. अगर कोई भी कंपाउंड एल्डिहाइड है तो वो कोई भी रिएक्शन शो कर सकता है जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स करेंगे. तो उसमें से देखा गया कि बहुत सारा रिएक्शंस उसमें एब्सेंट होते हैं एल्डिहाइड होने के बाद भी. तो इससे क्या मालूम चलता है कि ये कंपाउंड जनरली ये एग्जिस्टेंस इसमें कितना है या क्यों नहीं है, इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. और साथ ही साथ हम लोग एक चीज देखने वाले हैं कि व्हाई दिस कंपाउंड डू नॉट शो द पॉजिटिव टेस्ट विथ सम रिएजेंट्स. तो यहाँ पे जो ये कंपाउंड का जो एक प्रॉब्लम है कि डी ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज एग्जिस्ट इन ओपन चेन फॉर्म आल्सो, बट it has some limitations also. That is, in the open chain structure of the glucose it has some limitations also. And what are the limitations? For that limitations to generally arise on cyclic structure of the glucose. तो वहाँ पे हम लोग को कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलेंगे, और साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब इट इज इन क्लोज फॉर्म. लाइक ऐसे अगर 6 कार्बन है तो यहाँ पे जनरली वी कैन जनरेट 2 टाइप्स ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स. तो जनरली 2 टाइप्स ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब एक होते है तुम्हारा पायरेनोस फॉर्म, ठीक है, एक होता है पायरेनोस फॉर्म और एक होता है हम लोग का प्यूरेनस फॉर्म. फ्यूरानोस फॉर्म मतलब अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका नाम हो सकता है पायरेनोस फॉर्म भी हो सकता है या फ्यूरानोस फॉर्म भी हो सकता है. अगर पायरेनोस होता है तो यहाँ पे हम लोग को एक ही चीज बोलना है कि पायरेनोस कहाँ पे होगा. अगर पायरेनोस है तो जनरली यहाँ पे पायरेन की तरह देखना होगा, मतलब हेट्रोसाइक्लिक, जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, लाइक दिस वे. इसको बोलते हैं हम लोग सॉरी इसका बॉन्डिंग ऐसा होगा. तो ये होता है तुम्हारा पायरेन की तरह देखने में होगा, क्योंकि हम लोग का ग्लूकोज कितना कार्बन है, 6 कार्बन है. तो यहाँ पे जनरली ये पायरेनोस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हम लोग बाद में देखने वाले. और फ्यूरेनोस मतलब 5 मेंबर रिंग, और 5 मेंबर रिंग मतलब ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूरेन. सो ग्लूकोज, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, उसमें बहुत सारा लिमिटेशंस है. तो इसको सपोर्ट कैसे किया हम लोग ने? बाय सम रिएक्शंस. क्योंकि अगर ग्लूकोज में जब हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है, बट वो एल्डिहाइडिक ग्रुप होने के बाद भी अगर वो फ्री होते तो इट कैन शो द रिएक्शंस as the aldehyde molecules will show, as the aldehyde functional group will show the positive test. But in case of glucose, there will be some negative test also. And for that, we generally arise some cyclic structure from the open chain. मतलब cyclic structure of glucose ज़्यादा समय तक existence ज़्यादा है उसमें, क्योंकि वो limitations है. तो इसके लिए हम लोग को 2 तरह का structures मिलेंगे. अगर 6 membered carbon हुआ,
जैसे ग्लूकोज, तो ये पायरनस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये पायरनस फॉर्म में, लाइक दिस वे, ठीक है। अगर 5 मेंबर्ड रिंग है, जैसे अगर ग्लूको सपोज पेंटा एसिड, अगर सपोज 5 मेंबर्ड रिंग है, एल्डो पेंटोस है सपोज, तो ये जनरली फिरोनस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अगर 6 मेंबर्ड है तो इसमें पायरनस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो ग्लूकोज का एग्जिस्टेंस होगा पायरनस फॉर्म में। लेट अस सी वन बाय वन। तो यहाँ पे तो जनरली व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज हैविंग सम प्रॉपर्टीज, जो रिएक्शंस के बेसिस के ऊपर होगा। जैसे मेरा फर्स्ट जो रिएक्शंस है जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड, कि ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एक नेगेटिव टेस्ट शो करते हैं, इसमें कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड जनरली क्या होता है, अगर एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शंस कराते हो, इट फॉर्म्स एन एडिशन प्रोडक्ट, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, क्योंकि एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शंस करते हैं। बट इन अगर तुम ग्लूकोज लेते हो एज ए मॉलिक्यूल, तब यहाँ पे रिएक्शंस नेगेटिव होंगे, मतलब तुम लिख सकते हो इट फॉर्म्स अ नेगेटिव टेस्ट, कोई रिएक्शंस नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे एक चीज है। और इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे अगर मैं कोई भी एल्डिहाइड लेता हूं, सपोज मैं लेता हूं एक एल्डिहाइड, सपोज ये मेरा एक एल्डिहाइड है क्योंकि मेरा कार्बोनिल है, सी डबल बॉन्डेड हो, इसके साथ एक H है, तो ये फंक्शनल ग्रुप डिसाइड कर रहा है कि ये क्या कंपाउंड है, एल्डिहाइडिक कंपाउंड है, इसको हम लोग बोलेंगे एल्डिहाइड। तो अगर तुम सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शंस कराते हो, then it forms an addition product. And what is the addition product here? The addition product will be like this way. 1 minute. So addition product will be like this way. CH3H, then O, Na, and in this case SO3H. ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर एल्डिहाइड कंपाउंड है, अगर एल्डिहाइड फ्री है, मतलब क्योंकि इसमें कार्बोनिल कंपाउंड में, अगर कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, तो ग्लूकोज में हम लोग ने देखा कि ये क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप कैरी करते हैं। तो इसलिए अगर सोडियम बाइसल्फेट रिएक्शंस करते हो तो ये प्रोडक्ट होना चाहिए था, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड सोडियम बाइसल्फेट बोल सकते हो, एडिशन प्रोडक्ट है। या फिर यहाँ पे एक चीज होता है कि यहाँ पे प्रोटोन ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो प्रोटोन ट्रांसफर होने के बाद जो प्रोटोन है ये हाइड्रोजन O के साथ चला जाएंगे और सोडियम SO3 के साथ आ जाएंगे। तो प्रोटोन ट्रांसफर में क्या होता है, प्रोडक्ट लाइक दिस वे, द प्रोडक्ट लुक्स लाइक दिस वे, OH एंड दिस विल बी SO3Na, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नेगेटिव, इसको पॉजिटिव लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। इसको तुम लोग पढ़ोगे इन एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे ग्लूकोज लेता हूं इन टर्म्स ऑफ दिस कंपाउंड, अगर मैं यहाँ पे ग्लूकोज लेता हूं तो यहाँ पे कोई मुझे रिएक्शन शो नहीं करेंगे। मतलब अगर मैं ग्लूकोज के साथ सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्शंस कराता हूं तो मुझे कोई भी रिएक्शंस देखने को नहीं मिलेगा, नो रिएक्शंस विल ओकर। इससे बोल सकते हैं कि यहाँ पे ग्लूकोज जो एल्डिहाइड ग्रुप कैरी कर रहा है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप इज नॉट फ्री। क्लियर। तो ये टेस्ट से मालूम चल रहा है, एक टेस्ट हम लोग ने देखा, बहुत सारा टेस्ट है जिससे कंफर्म हो जाता है कि ग्लूकोज हैव नॉट ए ओपन चेन स्ट्रक्चर, इट मे हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर। लेट्स सी व्हाई। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट next reactions we will see, don't in a detailed manner, but still we can see that why it is so. The next you can say the next reasons for that glucose will not show the reactions, but in case of aldehyde it will show. So अगर यहाँ पे और प्रोडक्ट लेता, अगर और एक रिएक्शंस कराता हूँ लाइक एमोनिया डिराइवेटिव्स, ठीक है। तो अगर मेरे पास एल्डिहाइडिक है ग्रुप है, सपोज यहाँ पे सपोज मेरा एल्डिहाइड है, क्योंकि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी ले सकते हो ऐसा करके, ग्लूकोज में CHO ग्रुप तो है ही, है ना। तो इसके साथ मैं अगर एल्डिहाइड एमोनिया डिराइवेटिव के साथ रिएक्शंस कराता हूँ, एमोनिया डिराइवेटिव मतलब इन प्लेस ऑफ वन हाइड्रोजन वन एक्स्ट्रा ग्रुप विल कम, सो दैट मे बी योर एनी प्रोडक्ट, दैट मे बी एनी रिएक्टेंट। सो एमोनिया डिराइवेटिव मतलब एमोनिया जैसे ही दिखना, बट इन प्लेस ऑफ वन हाइड्रोजन वन extra group will come, incoming group will come, that is suppose Z.
सो यहाँ पे अगर रिएक्शंस करता हूं तो क्या होगा प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट होंगे लाइक दिस वे। अगर मैं सीधा सीधे लिखना चाहता हूं तो यहाँ पे प्रोडक्ट होगा ऐसा, डबल बॉन्ड एन बॉन्ड जेड, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट तुम लोग देख सकते हो, ये होता है तुम्हारा सॉरी ये होता है एल्डिहाइड एमोनिया एडक्ट या डिराइवेटिव भी बोल सकते हो, ठीक है। सो इट इज एन एल्डिहाइड एमोनिया एडक्ट और यू कैन सिंपली कॉल एल्डिहाइड एमोनिया डिराइवेटिव। तो यहां पे अगर ग्लूकोज को लेते हो इन प्लेस ऑफ दिस कंपाउंड तो यहां पे कोई भी रिएक्शंस नहीं होंगे, तो सीधा सीधी बोल सकते हैं कि ग्लूकोज प्लस एमोनिया डिराइवेटिव नो रिएक्शंस विल ओकर। तो सीधा सीधी बात बोल सकते हैं कि यहाँ पे दो टेस्ट में ऐसा मिला कि ग्लूकोज डज नॉट शो द पॉजिटिव टेस्ट। व्हाई? इट्स नो रीजन इज देयर, तो रीजन इज ओनली इज दैट इट हैज नो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज नॉट शोइंग द पॉजिटिव टेस्ट विद द एमोनिया डेरिवेटिव, योर आंसर विल बी व्हाट? योर आंसर विल बी सिंपली दैट here the glucose does not have a free aldehydic group. For that reasons it does not form a aldehyde ammonia adduct or derivative, you can say. Now the question is that some other test is also there with that, and for that generally we have some more other reagents like 2,4-DNP derivative. 2,4-DNP derivative. So generally you just have to remember that glucose plus 2,4-DNP, that is dinitrophenyl hydrazine, ठीक है। इट इज ऑल्सो एन अमोनिया प्रोडक्ट, अमोनिया डिराइवेटिव। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको कि यहाँ पे भी नो रिएक्शंस विल ओकर। बट अगर यहाँ इस जगह में अगर एल्डिहाइड होते, सिंपली अगर कोई भी एल्डिहाइड मॉलिक्यूल होते, इट शोज एन पॉजिटिव रिएक्शंस दैट इट फॉर्म्स 2,4-dinitrophenyl hydrazone. Clear? Now the question is that 2,4-DNP's another name is Brady's reagent. Brady's reagent, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कभी कभार 1 मार्क्स का आ सकता है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ 2,4-DNP? सो इसको बोलते हैं ब्रैडीज रिएजेंट, ठीक है। एंड इट इज डन टू चेक वेदर द कंपाउंड हैज एन एल्डिहाइडिक ग्रुप और ए कीटोनिक ग्रुप। तो यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप था ग्लूकोज में, बट इट शोज नो रिएक्शंस, इट शोज अ नेगेटिव टेस्ट। तो देखो हम लोग ने 3 रिएक्शन तो साइड कर चुके हैं ना, और भी बहुत सारे रिएक्शन है लाइक और एक चीज है कि अगर हम लोग ने देखा कि ग्लूकोज, सिंपली मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिखना चाहता हूं तो क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है ना। तो ग्लूकोज प्लस और क्या हम लोग का था कि ग्लूकोज प्लस एसिड एनहाइड्राइड, अगर याद रखते हो तो इससे क्या कंफर्म किया था हम लोग कि हम लोग के पास वी हैव 5 OH ग्रुप्स, इसलिए ग्लूकोज क्या बनता है? ग्लूकोज पेंटा एसिटेट फॉर्म होते हैं ना, पेंटा एसिटेट। और ग्लूकोज पेंटासिटेट जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, जब ग्लूकोज पेंटासिटेट को हम लोग किससे ट्रीटमेंट करते हैं जनरली? तो ग्लूकोज पेंटासिटेट ऑन ट्रीटमेंट विथ जनरली योर विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक अमोनिया डेरिवेटिव है। तो बोल सकते हैं कि glucose plus acid anhydride, it forms a glucose pentacetate. But glucose pentacetate, when treatment with the ammonium hydroxide, it shows no reactions. तो इससे कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे कोई भी एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, ठीक है। कोई भी फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है बट इट इज नॉट ए फ्री। आई थिंक इट इज बॉन्डेड विथ सम अदर एटम्स, दैट्स व्हाई इट इज नॉट फ्री, and that confirms that it may have cyclic structure. And we will also see how the cyclic structure exists in glucose. Now the next topic is that any reagent is there? Yes, one more reagent. So glucose plus Skipp's reagent. Skipp's reagent, इसमें भी कोई पॉजिटिव टेस्ट नहीं मिलते, हम लोग को मिलते हैं नो रिएक्शंस। बट अगर यहाँ पे एल्डिहाइड होते फ्री तो स्किप रिएजेंट के साथ रिएक्शंस पॉजिटिव शो करते हैं। मतलब हम लोग जनरली स्किप रिएजेंट टेस्ट से क्या करते हैं, जनरली check the presence of aldehydic group in a molecule, whether the functional group aldehyde group is present or not. That is confirmed by the skip reagent test.
but here you are seeing that here it forms no reactions, it will not show any characteristics observation. So इससे मालूम चलता है कि we have some different structure for the glucose. Okay, now the question is that why the glucose, whether the glucose is stable or not in case of open chain, whether any existence is there for that compound. जनरली हम लोग अगर देखते हैं कि डी ग्लूकोस मार्केट में जो आते हैं, मतलब जो ग्लूकोस होते हैं वो जनरली ग्लूकोस दो टाइप का होता है, मतलब एक होता है डी ग्लूकोस और एक होता है एल ग्लूकोस. और डी ग्लूकोस क्या होता है कि जनरली व्हिच इज यू कैन से इट्स ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर, और जनरली फोटोसिंथेसिस के जब टाइम होते हैं जनरली जनरली एक फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होते हैं ना उसका एक क्या मिलते हैं हम लोग को जनरली इट ओकर्स इन प्लांट आल्सो एज ए प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो जनरली. इसके बाद जनरली अगर एनिमल और प्लांट के बारे में अगर देखते हो, एनिमल एंड प्लांट, इट इज द रिजल्ट ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द योर ग्लाइकोजन. तो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होने से इन एनिमल्स और प्लांट्स में जनरली ऑब्टेन होते हैं डी ग्लूकोज. इसके बाद हम लोग का ब्लड में देन वी हैव इन यूरिन आल्सो वी हैव डी ग्लूकोज. ठीक है, तो जनरली बोल सकते हो कि डी ग्लूकोज ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव मतलब इट इज फॉर्म्स एंड मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. ठीक है, थोड़ा अलग दिखाएंगे मिरर. अगर तुम लेफ्ट हैंड दिखा रहे हो दैट मीन्स यू आर शोइंग माई राइट हैंड, तो ये बोलते हैं इसको मिरर इमेजेस. और मिरर इमेजेस को अगर एक साथ लाओगे कभी भी इम्पोजेबल नहीं होते, सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, उसमें क्या होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब ये वाला ऐसे वाला, इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. बट इसको अगर ऐसे लाओगे दैट मीन्स तुम यहाँ पे मालूम नहीं चल रहा है कि इतना हैंड है ना, अगर अच्छे से लगाओगे तो मालूम नहीं चल रहा है कि हाउ मेनी हैंड आई हैव फिक्स्ड हियर ना, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसको बोल सकते हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. और अगर नहीं है मतलब ऐसा है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, अगर ऐसा है तो क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, मतलब मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. लेफ्ट हैंड राइट हैंड को अगर एक साथ लाओगे तो क्या होगा, इट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बोल रहा हूं किंतु रे. तो यहाँ पे ग्लूकोज भी इस टाइप का एग्जिस्टेंस करते हैं. ठीक है, सो इन माई नेक्स्ट क्लास आई विल शो यू that how the D-glucose exists in a two forms. Okay, so basically for today this much. नेक्स्ट वीडियो में मैं और डाल दूंगा तुम लोगों के लिए. ठीक है, पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो. थैंक यू.